video. First of all, she had asked about the legitimate government. Then the second is the Syrian beginning, which is otherwise also called as the Short March or Dandi March. And third is the impact of globalization on India. Now you see what is happening here. First of all, this one is political science, this is history, this is economics. Now legitimate, anything that is being authorized by law, to put it simple, legal, authorized. Now this is the chapter of the outcome of democracy. Sometimes in this question, now in this chapter, there are three important things that have been asked. If you could see the political science of yours, you may find one thing, is that democracy part 1 was being taught in standard 9. And you see here given democratic politics part 2. Okay. It means that in standard 9 days, if you could track back the democracy that you had studied, chapter is started with why democracy, after that what is democracy, and then different parameters about democracy have been discussed there. And finally we have concluded that democracy is a better form of government. Some demerits were of course discussed into that standard 9 syllabus connected to democracy. But as we know, no system in the world is perfect. Everything has some scope for improvement all the time. So comparatively, democracy is a better form of government when compared to any other alternatives. Be it dictatorship, be it rule by the religious feature, be it monarchy, whatever. Military dictatorship, 2-3 examples of military dictatorship have been given in the standard 9 days. Augusto Pinochet, General Pervez Musharraf, even that one non-democratically rule of Robert Mugabe of Zimbabwe we had studied. But then negating all those things, we finally accepted democracy as the better form of government. Now, why you have chosen democracy? So with some expectation, it may provide you good governance, it may ensure the dignity and equality, it may eject you out of poverty, because wherever the revolution took place, in history book also we are studying, that at the bottom of all revolutions in the world are hunger and hardships. The difficult situation of the people, when people find it difficult to survive, then they demanded from the system to bail them out, to protect them, save them from all those poverty and hunger. But when the system turned the deaf attention, paid no attention to their demands, then the people revolted and consequently the revolution took place. As the result of the revolution, democracy was established everywhere. So now we expected something from democracy. We struggled against non-democracy. We revolted against non-democracy. We fought against non-democracy. And we finally established democracy, of course, with certain expectation. So this year, the final conclusion, that is, what we expected from democracy and what came out of democracy, that is outcome. Okay. We expected many things because we became very much demoralized from the responses of the non-democratic setup. They were giving the privileges to one section and majority were being overlooked, not paying any attention to them. But in democracy, we thought, because that is legitimacy, most authorized form of government is democracy. So far the people's, our government, which is our government,
our government is only democracy. Monarchy is not our government. We don't have any control over the monarchy. Because somebody's father was the king, that is why the son became the king. So even if the father and son is not doing good to the people, people have no role to replace them with the other system, because that was a dynastic system. So far military dictatorship was concerned, by virtue of their power, their armed forces, they had thrown away Augusto Pinochet and established or brought, thrown away Allende and brought Augusto Pinochet. Okay, there is no role of ours, even if you are happy or not. 3,000 people, if you could recall, 3,000 people were been found missing during that Pinochet's rule. People don't have any right, they were nothing to do with, and whatever they wanted, they did. So there was no care for the people, there was no concern for the people, there was no control of the people. So any system in the world where the people have no control, so far from our angle, which is the most authorized form of government, that is most legitimate, authorized, is democracy. And in the support of that one, is that it may be slow, it is full of demerits, it is not giving you the response, it may not be accountable, because with these expectations you have chosen democracy. Sir, whether you will be, bringing any good to me or not, we expected कि उनसे हम लोगों को खाना नहीं मिलता था, आपसे खाना मिलेगा. Practically we thought it is not possible to bring good to everybody. But at least whatever you are doing, you will be answerable towards us. That is called accountability. ये actually extension है उसी चीज का. इसमें 3 सेक्शन डिस्कस किया गया, accountability and then responsiveness and then legitimacy. Okay, so ये सब expectations है हमारा डेमोक्रेसी से कि we must be giving you the accountability. किसको कहते हैं? That is answerable towards something. Sir, अब हम लोग याद करो कि democratically elected government was that of Robert Mugabe's government in Zimbabwe. रॉबर्ट मुगाबे का जो पार्टी था, वो पार्टी बहुत ही फेमस और प्रेस्टिजियस पार्टी था जिम्बाब्वे हिस्ट्री में, जिसको जानू पीएफ पार्टी को लगे, बिकॉज इट हैड प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ जिम्बाब्वे फ्रॉम द वाइट क्लचेस इन 1980. ओके, अब ये सब चीज हो गया. आपके पार्टी बहुत फेमस थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसा आपका भी रेपुटेशन था, तो उसके लीडर्स का भी रेपुटेशन बहुत बढ़िया था. उनको प्रेसिडेंट बना दिया, बने इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने. लेकिन आफ्टर बिकमिंग प्रेसिडेंट, इफ यू कुड रिकॉल सम ऑफ द पैरामीटर्स, he had amended the constitution. In a democracy, nobody, single person cannot amend the constitution. In India also the constitution is being amended many times, but then there is a process that amendment resolution has to be brought into the house of the people, that is Lok Sabha, has to be passed with certain majority, then goes there to the next house. Means there are many circulations, processes, and then only the amendment can be accepted, if provided that amendment is bringing any good to the people, otherwise not rejected. उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रेसिडेंट का पावर बहुत इंक्रीज करा दिया और लेस अकाउंटेबल. अगर मेरे पास पावर ज्यादा है कि हम तुम्हारी बात को सुन भी सकते हैं, तुमको पढ़ा भी सकते हैं, तुम्हारा टेस्ट भी ले सकते हैं, तुम्हारा सारा मार्क्स भी दे सकते हैं, इट मीन्स दैट हर चीज के लिए, बिकॉज आई हैव बीन गिवन अ मल्टीफेरियस पावर्स फॉर executing over you, then at the same time for any mistake I must be held responsible also. That responsibility is accountability. कि सर आपका इतना पावर था, आपका पावर था कि आप हमको पढ़ाएं, आपने अच्छा से नहीं पढ़ाया, गिव मी द रिप्लाई दैट व्हाई वोंट यू हैव टॉट मी प्रॉपरली. और आपको पावर था कि यू हैड गिवन द ड्यूटी ऑफ टीचिंग मी सच एंड सच थिंग्स, बट यू हैवंट टॉट मी, दैट इज बीन आस्क्ड इनटू द एग्जामिनेशन. So you must be held responsible for not teaching me, because we had given you the power and trusted over you. So that is accountability. तो डेमोक्रेसी आउटकम में हम लोग क्या देख रहे हैं पूरा में? इसमें देख रहे हैं कि हम लोगों ने जो आपसे एक्सपेक्ट किया, आपने उसको दिया कि नहीं. आउटकम में हम लोगों ने क्या देखा?
कि बहुत सारे चीजों में आपने दिया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट इश्यूज था वो नेशनल डिफेंस के नाम पर, सिक्योरिटी के नाम पर, कॉमन पीपल के पास सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अकाउंटेबल होने के लिए ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है, और वो ट्रांसपेरेंसी इज द मेन थिंग ऑफ डेमोक्रेसी, जो है नहीं। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट, जिसको आपने चुना है, क्या क्या कर रही है, क्या क्या नहीं कर रही है, नहीं आपको पता है, पूरा भी नहीं पता अच्छे ढंग से। बहुत चीज पता होगा, लेकिन सब चीज पता है, कैन यू से आंसर नो? तो कहाँ है अकाउंटेबल जब आपको पता ही नहीं है कि हम आपके लिए क्या कर रहे हैं? इन अदर वर्ड्स, आई एम नॉट अकाउंटेबल टू यू पीपल। जिसको हम चेक करें भाई कि उसका चेकिंग दिया, पहला डेमोक्रेसी स्टार्ट्स विद द इलेक्शन, कि फ्री इलेक्शन होगा, रेगुलर इलेक्शन होगा, यहाँ तक तो ठीक है, इसमें डेमोक्रेसी इज बेटर। लेकिन फेयर इलेक्शन होगा कह सकते हो? होता ही नहीं है, बहुत जगह पे नहीं होता। तो यानी हम अकाउंटेबल हैं। अब आप पूछेंगे सर वो क्रिमिनल आदमी कैसे जीत करके आ गया? कोई जवाब नहीं है। हम तो उनको वोट नहीं दिए थे, हम तो जिनको वोट दिए थे इस पार्टी में पता चला वो छोड़ करके दूसरा पार्टी बना लिया। गिव मी द अकाउंटेबिलिटी। हमने तो आपको वोट दिया था कि आप मेरा वेलफेयर करेंगे, बट इन द नेम ऑफ द वेलफेयर देखिए आपने तो मेरा कुछ किया ही नहीं। तो मेजर इश्यूज पर, सपोज दीज डेज दैट किसान मूवमेंट इज गोइंग ऑन, ओके, those kisans are also, those farmers are also the citizen of the country. They would have also given their votes in the making of the government. What is right, what is not wrong, I'm not talking about. I'm not making it political. But then one thing is for sure, that the government must be accountable to the everything that the farmers are demanding may not be correct. You cannot please everyone, but everything that is farmers are demanding are also incorrect, that you cannot say, because they are not mad that thousands and thousands of the people have been sitting on the road in this adverse weather condition, prepared to die. Many dead died also, okay, but they may not be only just doing the things for nothing. There has to be some reason into that. तो आप उसको अकाउंटेबल बनाएं, नहीं तो आप भी, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ठीक है, when compared to non democracy you are more accountable. ये तो हो गया consolation prize. Why should I compare to non-democracy when I have rejected non-democracy already? कि सर आप बहुत चीजों में जवाब देते हो तो कोई चीज में जवाब नहीं देता था, तो वो कोई चीज में जवाब नहीं देता था तो उसको तो हमने हटा दिया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लुईस 16 को भगा दिया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लुईस 16 को भगा दिया, तो उससे उम्मीद नहीं थी इसलिए भगा दिया। लेकिन रॉस्पियरी साहब जब आपको बना दिया गया तो आपके टाइम पीरियड को मैंने रेन ऑफ टेरर क्यों कहा? आपने भी तो वही काम किया तब ना रेन ऑफ टेरर का। तो यहाँ पर आपको मोर अकाउंटेबल है, लेकिन कंप्लीटली अकाउंटेबल नहीं है। दैट केम आउट ऑफ डेमोक्रेसी। दूसरा, ठीक है सर, आप पूरा का पूरा मेरे को सब चीज नहीं दे सकते, आप ये इतना कह सकते हैं कि यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन। दूसरा बात है कि इवन इफ यू आर वेरी मच सीरियस अबाउट डूइंग गुड टू द पीपल, इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने पढ़ा कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज ऑफ वेलफेयर। हमने वर्ड वहाँ डेवलपमेंट को वेलफेयर में कर दिया, क्योंकि डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली बाय द पीपल, फॉर द पीपल भी है, ठीक है। तो फॉर द पीपल मीन्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। तो मुश्किल है थोड़ा सा मेरे लिए, क्योंकि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट, मीन्स आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट। तो इनको हम, आई एम सीरियस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एवरीबडी, आई एम अकाउंटेबल फॉर यू पीपल, बट स्टिल इट विल टेक टाइम, ओके, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग डिमांड है। यहाँ तक तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन उसी में हम लोगों ने पढ़ा कन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ डेवलपमेंट, पढ़ा हम लोगों ने। वो क्या है सर? कि जो तुम्हारे लिए डेवलपमेंट है, व्हाट इज अ डेवलपमेंट फॉर यू मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर्स, तक तो ठीक है, बट इवन इट कैन बी अ डिसास्टर फॉर अदर्स। एग्जाम्पल गिवन ऑफ बिग डैम्स, लार्ज डैम्स, एक्सेट्रा, व्हाटएवर। तो अब अगर इंडस्ट्रीज आस्किंग फॉर बिग डैम्स एंड farmers, small farmers telling and complaining that sir, in the construction of big dams my small land will be submerged, what is the good for me in the case of construction of that big dam, so please stop making that one। तो हमको तो थोड़ा सा बीच का रास्ता में समय लगेगा, because industry is also the parameter of development and whatever the farmers telling, India being an agriculture country, वो यहाँ पे मेरा sincerity तो है, लेकिन आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं
एटलीस्ट रिस्पॉन्स तो देंगे, रिस्पॉन्सिव होंगे, या तो रिस्पॉन्स भी नहीं होता है। इसमें भी अगर हम लोग रिपोर्ट कार्ड, यानी दिस चैप्टर इज अ रिपोर्ट कार्ड ऑफ डेमोक्रेसी। अभी तक पढ़ा हम लोगों ने सारा चैप्टर डेमोक्रेसी है क्या, बाकी को छोड़ दिया, कुछ उम्मीद से छोड़ा होगा। व्हेनेवर यू आर लिविंग वन सिस्टम एंड एक्सेप्टिंग अदर्स, तो कुछ उम्मीद होगा कि मैंने उससे दोस्ती तोड़ दी, तुमसे दोस्ती शुरू की, यानी कुछ ना कुछ आई फेल्ट हर्ट देयर एंड समथिंग आई एक्सपेक्टेड आउट ऑफ दिस वन। तो लेट मी सी कि ये एक्सपेक्टेशन है कि नहीं। अब अगर तुम ये कहते हो कि सर उससे तो बढ़िया हमने किया, तो सर उससे बढ़िया से हम क्यों कंपेयर करें, मैंने तो उसको छोड़ ही दिया फिर। सो दैट इज, यू टेल दैट वॉट एवर आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू आर डिलीवरिंग और नॉट। तो इस डिलीवरी में भी हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी में रिस्पॉन्सिवनेस की कमी है। आए दिन मान लो रिस्पॉन्स देने की बात होगी कि सर आप मेरी बात एटलीस्ट सुनेंगे तो जरूर, ठीक है, मान लिए कि कंफ्लिक्टिंग नोशन ऑफ डेवलपमेंट है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, अब तो सुन भी नहीं रहे, ये सुन रहे हैं। अभी वी टेक दैट एग्जांपल ऑफ वंस अगेन दैट कृषि बिल, उनका जो भी डिमांड है आप करो, जैसे भी रह रहे हो, क्या कर रहे हो, हम आ करके थोड़ा बहुत आपसे बात कर लिए, एक लीपा पोती कर दिया, मैंने अपना व्यू पॉइंट डाला, आप अपना व्यू पॉइंट कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है तो सॉल्व करेंगे ना। आपने आप मैक्सिमम क्या कर रहे हैं, आप जलियांवाला बाग नहीं कर रहे हैं, गोली से नहीं मरवा रहे हैं। उससे बेहतर है कि देख तो हम तो अब तक गोली से मरवा दिए रहते, उससे तो नॉन डेमोक्रेसी था। तो यहां पर आप रिस्पॉन्स में भी कमी दिखता है। लोगों करप्शन देखो, रोज दिन उम्मीद करते हैं कि फ्री फ्रॉम करप्शन होगा। हमने पिछला क्लास में भी कहीं बताया था कि ये बर्थ राइट है करप्शन। आप जाते हैं किसी से किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में फिर से एक बार फंक्शनरी ऑफ द डेमोक्रेसी, आप अपना काम कराने जाते हैं और आपके पास ज्यादातर लोगों के पास सुनने में आता है ना कि बिना घूस दिए काम नहीं होगा। इज इट ऑलमोस्ट अ रिकॉर्ड स्टोरी, डेली ट्रेल। कल कौन था भाई, तो सबसे ज्यादा घोटाला था वो चारा घोटाला, फॉर्डर स्कैम 900 करोड़ का, उसके सामने तो कुछ नहीं हुआ। विजय माल्या तो 10,000 लाख करोड़ लेके चला गया। एक वो विजय माल्या गया, तब तक पीछे से नीरव मोदी भी आ गया। ये तो रोज दिन का कहानी सुन रहे हैं हम लोग। Whose money is that one? पीपल्स मनी। एक तो मेरे टैक्स से आपको सैलरी भी मिल रही है जो काम करने के लिए, अब हम वही काम कराने के लिए आपके पास जाते हैं तो फिर बोलते हैं कि जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक, मीन्स यू आर नॉट गिविंग मी द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू विल बी। तो एकदम बिल्कुल सुनता ही नहीं था थर्ड स्टेट को, फाइन, फर्स्ट स्टेट को प्रिविलेज था, सेकेंड स्टेट को प्रिविलेज था, थर्ड स्टेट को सुनता ही नहीं था। आप भी तो नहीं सुन रहे हैं, कुछ बात में आप सुनते हैं, यू आर लार्जली नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो बोलेंगे हम थोड़ा बहुत सुनते हैं, सुनेंगे, पैसा देगा तो सुनेंगे। वंस अगेन मोर और लेस इसमें भी रिपोर्ट कार्ड थोड़ा निगेटिव बना, ठीक है। लेकिन ये लेजिटिमेसी वाला में एकदम कंप्लीट कि रिस्पॉन्सिव नहीं है, क्लीन नहीं है, फ्री ऑफ करप्शन नहीं है, फ्री फ्रॉम करप्शन नहीं है, उतना अकाउंटेबल नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। लेकिन फिर भी अपना गवर्नमेंट कौन है, पीपल्स गवर्नमेंट इज ओनली डेमोक्रेसी। और अपना वाला जो कनेक्टिविटी है ये डेमोक्रेसी के साथ ही है कि योर हाउस में बहुत सारा चीज़ नहीं होगा, मेरे घर में एसी नहीं है, मेरे घर में डीसी नहीं है, बीसी नहीं है, जो है व्हाटएवर, लेकिन मेरा घर है। 5 स्टार होटल में मेरे को 5 दिन रखोगे ठीक ठाक है, लेकिन हमेशा के लिए रखेंगे तो फिर घर की याद आएगी। इट मे बी ब्रोकन, इट मे नॉट हैव ऑल द फैसिलिटीज दैट देयर इज इन द 5 स्टार होटल। सो माई होम इज माई वाला जो इमोशनल कनेक्टिविटी है वो सब। सो दैट इज व्हाई डेमोक्रेसी इज मोर लेट। और इसी से फिर हम लोग कंप्लेन भी करते हैं। कंप्लेन इज द पैरामीटर ऑफ व्हाट, दैट सम ऑफ योर डिमांड वेयर बीन फुलफिल्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। नहीं तो आप कंप्लेन ही नहीं करते। लुई 16 से आपने कंप्लेन किया, आपने डिमांड किया, फिर रिवोल्ट किया, ठीक है। यहाँ पे आप कंप्लेन करते हैं कि आप अच्छे नहीं है, आप नहीं तो सुनिए, नहीं तो आपको हटा देंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, ये मेरे पास पूरा रिमोट कंट्रोल, या तो मेरी बात सुनिए या तो हटा देंगे। ये तो ये पूरी अथॉरिटी सिर्फ ओनली फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया वो तो सुनता ही नहीं था, ये भी नहीं सुनता है, लेकिन इसको सुनना पड़ेगा। दैट इज लेजिटिमेसी, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। दूसरा है, इसको कर लेते हैं, अगर ये कर सके, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आकर इसको करके आगे कंटिन्यू करेंगे। सीडीएम। अब अगर पिछले क्लासेस को याद करो,
तो हम लोगों ने टाइमलाइन के हिसाब से टाइमलाइन को कनेक्ट करो। टाइमलाइन था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड प्रॉमिस समथिंग टू द इंडियंस, बट दोज promises were not delivered. As a result, many Indians came together. Not delivery में हम लोग इनसाइड में देखते हैं, कहीं पर किसी को फोर्स रिक्रूटमेंट कराया, कहीं पे कुछ कराया, कहीं पे कुछ कराया। कॉन्सिक्वेंटली मेनी इंडियंस वेयर अगेंस्ट दैट। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थोड़ा नेशनलिज्म लाया, उसके बाद आया वो सब चंपारण उसने लाया, फिर रॉलेट सत्याग्रह ने लाया, फिर नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट ने लाया, फिर सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से स्वराज का डिमांड किया। लेकिन विद इन द कांग्रेस में फिर डिस्प्यूट हुआ, यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। और उसमें से बहुत लोग का कहना था कि कोई कहता था हम डोमिनियन स्टेटस लेंगे, कोई कहता था हम कंप्लीट स्वराज लेंगे, कोई कहता था कि हम गवर्नमेंट के साथ कंटेस्ट करेंगे उस इलेक्शन में और तब बताएंगे कि गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, दैट इज मोतीलाल नेहरू वाले लोग। तो उसमें से जो सबसे बढ़िया जो ऑफर आया वो था कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, कि आप बाहर के लोग हैं, नेशनलिज्म की फीलिंग आ ही चुकी थी, तो हम आपसे आप पर क्यों डिपेंडेंट रहे, आप मेरे को देने वाले कौन होते हैं, सो गिव मी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और मैंने डिक्लेयर कर दिया। और 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे लाहौर में क्या हो गया, उन्होंने झंडा फहराया जवाहरलाल नेहरू ने। दैट इज लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929 के दिसंबर में हुआ था, शायद 30 दिसंबर या कुछ था। और उसी में रिजोल्यूशन लिया गया कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, और उन्होंने 26 जनवरी को झंडा फहरा करके डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया बिकेम नाउ इंडिपेंडेंट। अब अगर आप नहीं मानते हैं तो हम आज के बाद से पैरेलल लड़ाई लड़ेंगे अपने देश की कंप्लीट आज़ादी के लिए। हम आज़ाद हैं आपको जो करने की, ठीक है। और फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स वो कंप्लीट आज़ादी की बात होने लगी। लेकिन बात तो अच्छी थी, लेकिन कितना लोग इकट्ठा हुआ, वही दो कांग्रेस के डेलीगेट्स लोग थे बस। क्योंकि कांग्रेस में जितना भी लीडरशिप वाला जो लोग था उसमें तो डिस्प्यूट था ही, और कॉमन मैन के लिए अब बहुत चीज़ नहीं था यहाँ पर। कल तक आप डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं, बहुत सारा कॉमन आदमी है ना, उसको बहुत सारे आप कहते हैं कि हमने आपको जीएसटी दिया, मैंने डिमोनेटाइजेशन दिया, मैंने बहुत सारा बड़ा बड़ा टर्म आप यूज़ करते हैं। कॉमन आदमी से जाकर पूछें अगर हम लोग, उनको क्या मिलता है, तो उनको तो लगता है कि जब से हम जन्म लिए थे, यू गो एंड आस्क द पर्सन लिविंग इन द विलेज रिमोट एरिया में, वो एंसेस्टर को जैसे देखते थे मोर और लेस उनका, कितना गवर्नमेंट आया, कितना जीएसटी आया, कितना आई डोंट नो, ये सेंसेक्स बहुत बढ़ गया तो इतना मेरा जीडीपी बहुत बढ़ गया। दीज आर सम वेरी हेवी इकोनॉमिक टर्म्स। ओवर द ईयर्स द इंडिया बिकेम अ डेवलपिंग नेशन, पर कैपिटा इनकम इंडिया का पढ़े ना हम लोग पहला चैप्टर में ये सब इकोनॉमिक्स के। पूछो तो उससे जा करके सुंदर पहाड़ी में कोई एक आदमी है जिसका पर कैपिटा इनकम क्या हुआ नहीं हुआ, उसको तो कुछ पता नहीं है। उसको लगा कल भी वैसे ही स्थिति था जैसा आज है। तो मेरे को कॉमन आदमी का कुछ बात उठाओ तो हम तुम्हारे साथ आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। गांधी जी को लगा कि बात सही है, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। जैसा कि रूसो को लगता था कि रूसो सॉर्ट ऑफ अ पीपल वांटेड व्हाट, रूसो सॉर्ट ऑफ पीपल, मेजनी सॉर्ट ऑफ पीपल वांटेड व्हाट, who will give me the answer? They wanted the unity of the country plus the independence and plus democracy, correct? कॉमन आदमी को तो खाना चाहिए। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को हम लोगों ने पढ़ा था, इट वाज एक्चुअली अ सबसिस्टेंस क्राइसिस। सो कॉमन पीपल के लिए सबसिस्टेंस क्राइसिस था। मैंने तुमको कन्विंस कराया कि योर सबसिस्टेंस क्राइसिस इज बिकॉज ऑफ लुईस 16 सिस्टम। द मोमेंट ही विल गो, योर सबसिस्टेंस क्राइसिस विल बी रिजॉल्व। यही चीज अभी हम लोगों ने डिस्कस किया डेमोक्रेसी में, तो उसको भगाओ, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। भगा दिया हम लोगों ने, तुम्हारा भी पर्पस सॉल्व। तुम तो चाहते थे, लुईस 16 वाज द सिंबल ऑफ डिक्टेटरशिप, नॉट डेमोक्रेसी, ओके, मोनार्की नॉट डिक्टेटरशिप। और वो जैसे गया तुमने डेमोक्रेसी इंस्टॉल कर दी, यानी तुम्हारा पर्पस सॉल्व हुआ, लेकिन कॉमन पीपल तुमको सपोर्ट किया तब हुआ। और कॉमन पीपल वो डेमोक्रेसी के लिए सपोर्ट नहीं किया, कॉमन पीपल सपोर्टेड फॉर द कॉमन डिमांड कि हमको भी भाई इक्वालिटी मिले, खाना मिले, ये वो मिले। मोस्टली इट वाज सबसिस्टेंस क्राइसिस का रिसोल्यूशन हो। वैसा ही यहाँ पर भी कुछ बात उठाएं, तो गांधी जी ने सोचा कि कुछ ऐसा बात उठाया जाए जो कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, कि अभी तक तुम बोले डोमिनियन स्टेटस चाहिए, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कॉमन पीपल डिड नॉट गेट इन्फ्लुएंस।
तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक डिमांड किया उस समय वाइसराय से लॉर्ड इरविन। इनको लगा कि कुछ कॉमन मैन का इशू उठना चाहिए। लॉर्ड इरविन वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और टाइम पीरियड देखो 1930, तो 26 जनवरी 1930 को वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड हुई थी। इन्होंने इनको एक चिट्ठी लिखा, ठीक है, शायद 30 जनवरी को, जैसे 31 जनवरी 1930 को, 26 तारीख की बात हो गई। चाहते थे कि ये इसमें सब लोग जुड़े तो बहुत बढ़िया बात होगा, लेकिन नहीं जुड़ा तो तुमको जोड़ने के लिए, कॉमन आदमी को जोड़ने के लिए इन्होंने एक चिट्ठी लिखी लॉर्ड वाइसराय को, आई मीन लॉर्ड इरविन को। उसमें उन्होंने टोटल 11 डिमांड्स रखी। अब ये 11 डिमांड में वन साइड क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है कि दिस 11 डिमांड वाज पर्पस्ड ऑन व्हाट, कि भाई सभी को टच करें। कुछ स्टूडेंट का भी था, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट का भी था, कुछ फार्मर के लिए भी था, कुछ लीडर्स के लिए भी था। देयर वर अ वाइड रेंज ऑफ डिमांड, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दैट वन इज द एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। अब सॉल्ट टैक्स पर, सॉल्ट पे टैक्स लगता था, ठीक है, और सॉल्ट पे टैक्स लगता था। दूसरा एक था क्या कि द यूरोपियंस वेयर ओनली बी गिवन द लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट इन इंडिया। अंग्रेज जिसको देंगे तो यूरोपियंस, ब्रिटिशर्स को ही मिलता था। अब सॉल्ट को बनाने का भी अधिकार उन्हीं के पास, और टैक्स लगा तो सॉल्ट भी क्या हो गया, महंगा हो गया, और कॉमन पीपल के पास। तो गांधी जी थ्रू द सॉल्ट टैक्स लोगों को जोड़ना चाहते थे, और ये भी दिखाना चाहते थे इट इज द मोस्ट ब्रूटल फेस ऑफ ब्रिटिश नेशनलिज्म या ब्रिटिश रूल। क्योंकि एक तरफ तो ब्रिटेन क्या कह रहा है, तुम्हारे पास एक्सक्यूज हो गया था ना कि हमने तो साइमन कमीशन भेजा आपको रिफॉर्म करने के लिए, आप लोगों ने बॉयकॉट करके भगा दिया, व्हाट कैन आई डू। लेकिन आपने क्यों भगाया, बिकॉज इट वाज ऑल वाइट कमीशन, करेक्ट। अब आप तो मेरे बारे में सोच ही नहीं रहे थे, लेकिन पब्लिक में क्या चला गया या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि वी वांटेड टू गिव मेनी थिंग टू द इंडियंस, बट द इंडियंस बॉयकॉटेड अस, सो व्हाट कैन आई डू। ओके, तो through this one the Gandhi ji also wanted to show to the rest of the world कि the government in British government in India, if unable to give the even the salt, which is very easy, which is easy to manufacture and which is a very common item in the food, very essential one, जब वो salt नहीं दे रही है फ्री में, तो बाकी रिफॉर्म क्या देगी। तो इसके थ्रू में लोगों को भी लगा, और कॉमन आदमी के लिए क्या था, चावल को बॉईल किया, सबको मिल गया, जैसे भी मिलता था, माड़ भात में थोड़ा नमक मिलाया, खा लिया। वो नमक भी अब महंगा हो गया। अब इंडस्ट्रीज के लिए क्या है, टाटा सॉल्ट भी बना रहा है, तो टाटा कंपनी फायदा उठा रही है ना भाई। सो देयर आर मेनी सॉर्ट ऑफ सॉल्ट मैन्युफैक्चर, सो देयर वर मेनी इंडस्ट्रीज, इंडियन इंडस्ट्रीज हु कैन नॉट मैन्युफैक्चर सॉल्ट बिकॉज द लाइसेंस वर नॉट गिवन। एंड फॉर द कॉमन पीपल द टैक्स ऑन द सॉल्ट मीन्स व्हाट, the price of the salt will go high, which the common people cannot even afford it. Okay, so we should repeal this one. अब उसके लिए हम इसका आंदोलन करेंगे, तो कॉमन पीपल को ठीक लगा कि अब इसमें कॉमन लोगों का बात उठाया उन्होंने, इसलिए वेरी क्लेवरली ही वाज ओनली बीन पिकिंग द कॉमन मैन्स इशू एवरीवेयर। फिर इन्होंने चिट्ठी लिखी, these are all 1 mark question also. So 31st January 1930 stating 11 demands, और उन्होंने लिखा कि अगर 11 मार्च तक 1930 तक अगर ये सारे डिमांड्स पूरे नहीं हुए, तो 12 मार्च से हम आंदोलन करेंगे, ठीक है। ओबे नहीं करेंगे इसको कंप्लीटली, हम लोग इस नियम को, नमक वाले कानून को ओबे नहीं करेंगे। दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल इज पब्लिक, एंड एक ऐसा मूवमेंट होगा जो डिसोबे करेंगे, आपको जो करना है कर लो, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो समटाइम्स कॉल्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्या चीज, क्या सॉल्ट मार्च। सो 12 मार्च 1930 से उन्होंने, लॉर्ड इरविन को सुनना तो था ही नहीं, चिट्ठी लिखो जो करो, तो लेकिन इट वाज लेस, नेचर ऑफ द लेटर वाज नॉट, इट वाज सॉर्ट ऑफ अ वार्निंग कि अगर कोई चिट्ठी ऐसा लिखता है कि अगर मेरे को ये नहीं दीजिएगा तो आंदोलन करेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो इन्होंने शुरू किया 12 मार्च से
इनका इनका आश्रम था गुजरात में। ये सब तुम्हारा मार्क्स इसमें भी आ गया, मैप के लिए भी। साबरमती से शुरू हुआ, अहमदाबाद के पास है, यहाँ से दांडी तक। दांडी एक कोस्टल विलेज है। इन्होंने 78 लोगों के साथ ये यात्रा शुरू की, ठीक है। और इस 12 मार्च से, और यहाँ पे ये 6 अप्रैल को पहुंचे दांडी में। फिर बॉईल किया पानी और बना दिया नमक, तोड़ दिया कानून। पब्लिकली एक सेरेमनी बना, पब्लिकली तोड़ा, प्राइवेटली नहीं तोड़ा। इसीलिए दैट सॉल्ट मार्च, चूंकि ये सॉल्ट के लिए मार्च था तो इसको सॉल्ट मार्च भी कहते हैं कभी कभी। चूंकि दांडी वाला तक डेस्टिनेशन था तो दांडी मार्च भी कहते हैं। अभी सब 1 माह की करीब 240 माइल्स की यात्रा थी। इन लोगों ने 24 डेज में कंप्लीट किया। ऑलमोस्ट 10 मिल्स चलते थे, जहाँ रात में रुकते थे। लाखों लोग, हजारों लोग आते थे मीटिंग में सुनने के लिए। तब गांधी जी ने वहां पे बताया, चूंकि एनसीएम में बताया था ना कि स्वराज उठ का, उन्होंने यही ना बताया था 1909 में कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया हैड बीन एस्टैब्लिश्ड विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस, कंटिन्यूइंग विद दैट कोऑपरेशन, अगर वी विथड्रॉ दैट कोऑपरेशन देन द ब्रिटिश रूल विल सीज टू एक्सिस्ट एंड स्वराज उठ का। अब अलग अलग लोगों ने स्वराज का अलग अलग मीनिंग निकाला। अवध वालों ने क्या निकाला कि तालुकदार और जमींदार को लगान और टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे, रेंट नहीं देना पड़ेगा, नो रेंट कैंपेन। तो गुडेम हिल्स वालों ने क्या निकाला, फॉरेस्ट एक्ट रिपील हो गया, कैंसिल हो गया, रिपील मतलब कैंसिल, और हम लोग जहां जाएंगे आराम से जा सकते हैं। स्वराज वालों ने क्या निकाला, सॉरी प्लांटेशन वालों ने क्या निकाला, 1859 का जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट है वो खत्म हो गया, अब हम लोग घर जाएंगे। सब अपना अपना मीनिंग निकाल लिया। तो इस बार इन्होंने स्वराज का मतलब क्या था, इंडिपेंडेंस क्या है, उनको भी एक्सप्लेन किया और बोला कि वो बॉयकॉट तो चलेगा। एक क्वेश्चन भी बनता है कि हाउ वाज सीडीएम डिफरेंट फ्रॉम एनसीएम। एनसीएम में सिर्फ नॉन कोऑपरेट करने का बात किया था, टाइटल बाइकॉट ये वो। इसमें बाइकॉट के साथ साथ डिसोबे करने भी, तोड़ने भी बोला, कानून सब भी तोड़ने बोला, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द सीडीएम, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस। सो समटाइम्स इट इज आस्क्ड आल्सो दैट व्हिच इंसिडेंट ignited the beginning of the civil disobedience movement, that is salt march, okay। इसी से शुरुआत हुआ। अब जहाँ जहाँ कानून था जो जो सब तोड़ने लगा। जहाँ फॉरेस्ट कानून था फॉरेस्ट तोड़ने लगा। जहाँ पे सब लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग और फैक्ट्री के सामने नमक बनाने लगे। पीपल स्टार्टेड इन एडिशन टू दैट बॉयकॉट ये भी करना शुरू कर दिया, ठीक है। रहने दो, क्योंकि अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर अगर